वो अब सत्य साबित हो रहा है। यूपीए सरकार इस देश का संचालन किस प्रकार से 10 वर्ष करती रही है, ये इसकी सच्चाई इस पत्र से प्रकट हुई है। किसी भी सरकार के संचालन में अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाती है, देश का विकास किस प्रकार से होता है, ये सबसे प्रमुख रहता है। पर्यावरण संबंधित अनुमतियां मिलना, उसमें वर्षों वर्ष लग जाएं, मनमानी के साथ किसको देनी है किसको नहीं देनी, पर्यावरण की परमिशन, इसके संबंध में अफवाहें थी, वो अब सच साबित हुई है। इसकी एक कानूनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुकूल देनी चाहिए, लेकिन मनमानी से दी जाए, पार्टी का हित किसमें है और पार्टी की इच्छा किसमें है, सरकार और कानून ये तय ना करे लेकिन पार्टी तय करे, प्रधानमंत्री और सरकार उसमें मूक दर्शक रह जाएं, इस आधार पर ये अनुमतियां दी जाती थी या रोकी जाती थी। ये देश का जो विकास रुका पिछले कई वर्षों में, प्रोजेक्ट्स का विलंब होना उसमें एक प्रमुख माना जाता था। ये देश की अर्थव्यवस्था के साथ एक खिलवाड़ थी। बदले की भावना के साथ अर्थव्यवस्था का संचालन हो रहा था, जिसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, और लोगों को तकलीफ देने में इनको आनंद आता था। यूपीए द्वारा संचालित देश में, शासन में, जिसको सैडिस्टिक इकोनॉमिक्स कहा जा सकता है, कि तकलीफ देकर लोगों को उसमें आनंद लेना, शासक दल इस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था का संचालन कर रहा था। निश्चित रूप से जिन्हें अनुमतियां दी गई या जिनकी रोकी जाती थी, अब दायित्व पर्यावरण विभाग के ऊपर है कि इन सब के ऊपर पुनः विचार करे, ताकि कानून की व्यवस्था फिर कायम हो और इन अनुमतियों का संचालन केवल कानून के मुताबिक हो, शासक दल के नेताओं की मनमानी के मुताबिक ना हो। In today's newspapers, a letter written by the former Environment Minister, Mrs. Jayanti Natarajan, to the Congress President has been published. What was so far rumored has been established to be true. Any government which administers the country, its foremost responsibility is to administer the economy of the country. The growth rates had radically gone down during the UPA government, and one of the prime reasons was that there was delay in approvals being granted to projects. Projects worth lakhs and lakhs of crores were held up for want of permissions. Today's letter conclusively establishes that it was not the statutory considerations, the mandatory considerations, which weighed with the ruling party and the government, but what weighed with them was the whims of political leaders of the party as to who is to be granted an environmental permission and who is not to be granted an environmental permission. When whims overtake legal requirements, this becomes a textbook case of crony capitalism. And this is exactly what the UPA government was practicing. The UPA was a practitioner of sadistic economy. This sadistic economy, which the UPA tried to build up,
was vindictive in nature, wanting to teach some people a lesson and wanting to favor some people. This obviously had to be on corrupt and for collateral reasons, and this is precisely why India suffered in the last few years of the UPA government. I hope the Environmental Ministry now will go into each of these permissions which were granted and not granted and make sure that these are expeditiously dealt with only as per law and no other consideration. Thank you. राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री 10 लाख का कुत्ता पहनते हैं। क्या भाजपा ज्वाइन करने की कुछ ऐसी चर्चा? देखिए, मेरी जानकारी में ऐसा कोई विषय नहीं है। सर, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया राहुल गांधी ने कि 10 लाख रुपए का कुर्ता पहनते हैं। देखिए, ये बेमतलब विषय है और इस तरह की मनगढ़ंत आंकड़े देना केवल राजनीति के स्तर को और नीचा करना है, जो उन्होंने इस वक्तव्य से किया है। Obviously, my view is that they should do it, because if permissions were being granted or held up for such collateral reasons, and that is why the country's economy had suffered, those in charge of the ministry certainly would be well advised to look into them afresh. सर, पार्टी पोस्टर सर अन्ना की तस्वीर पे फूल चढ़ाई गई है, तो आप पार्टी का ये आरोप है कि उन्होंने अपमान किया है हिंदू धर्म में। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, देखिए, ये बेमतलब आरोप है एकदम। सर, party poster has appeared in which Anna Hazare has been shown garland, his picture has been shown garland. I am not aware of it. Thank you. सर, एक सवाल है सर, उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के, क्योंकि जयंती ने पॉइंटेडली कहा है कि जो अडानी की फाइल थी वो वॉशरूम में, किसी वॉशरूम में मिली। देखिए, मैंने यही कहा है ना, मैंने यही कहा है कि जो कानूनी कारण होने चाहिए उसके अतिरिक्त अन्य कारणों से अनुमतियां देना या न देना, ये व्यवस्था की जा रही थी। सर, उत्तर प्रदेश सरकार